आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। वेल गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। रिपीट ऑफ 2003 फाइनल which was played between India and Australia on 23rd of March 2003 in Australia, if I'm not wrong, where India hammered by Australia with a margin of 125 runs. So again, in 2023, India and Australia are going to meet in the grand finale of the ICC Men's Cricket World Cup at Ahmedabad Narendra Modi Cricket Stadium, the biggest in the world as far as the cricket is concerned. Before that, it was Melbourne Cricket Ground, but now India left it behind. More or less 130,000 people or more than that will be available in the stadium now, and outside the stadium so many people, crores of Indian, will be expecting a World Cup number 3 for India. So the 11 players will be coming in the field, taking the burden of 140 crores people on their shoulders. Just hope India can write a history on 19th of November after 20 years. As far as India Australia final is concerned, is going to take place at 2 p.m. in Ahmedabad. The second semi-final of the World Cup 2023 was played between South Africa and Australia, where Africa won the toss and decided to bat first. A good start as far as Australia is concerned. Mitchell Starc, Hazelwood showed the class, and 24 for the loss of 4. Australia took advantage early in the game. South Africa was reeling at one stage, but Miller and Klaasen came out with a different mindset. Has a good partnership of 95 odd runs, and somehow they managed to score 212 runs for the loss of 10 wickets in 49.3 overs. They didn't play the quota of 50 overs, would have been some more runs, but what a fight back as far as Africa is concerned. Miller got a fantastic 100. He's the first man to get 100 as far as the knockout matches are concerned for South Africa. The chokers, the tag which has been intact with them, still not far away, still is attached with them, and they are out of the tournament again. So 5 to 6 time I think they have gone in semi-finals, but never have been in the finals. So good morning and welcome back on the show, Mr. Ramkrishnan ji, after completing the bit of a summary of the games. जी हाँ, सभी को सुप्रभात, नमस्कार और साथ साथ भारत के फाइनल में पहुंचने की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। जी हाँ, तो कहां से शुरू किया जाए? Nothing to start with, because India is going to play against Australia at the big final of the World Cup 2023 on 19th of November. That will be Sunday. So everybody will be at their homes. Office will be shut, closed. People will just watch the match, complete all the work before 2 p.m. to get ready for the drama thriller action as far as the final is concerned. South Africa, Australia. ऐसा लगा एक बार अफ्रीका फाइट बैक अच्छा कर रहा है, जबरदस्त फाइट बैक, 48वें ओवर तक मैच को ले जाना ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के अगेंस्ट, वो भी 212 रन मात्र बनाकर, काबिले तारीफ। वो भी ऐसे मौके पे ले जाना कि जब 10 ओवर में उनको महज 25 रन चाहिए थे। Absolutely. वहां पे अगर आप 8 ओवर तक मैच और खींच के ले गए, इसका मतलब उन्हें आपने 8 ओवर में 25 बनाने दिए, और Right. ये बिल्कुल अच्छी चीज है। अच्छा, मैं इसमें थोड़े से ओपिनियन देना चाहूंगा। जब 20 पे 4 होने के बाद अफ्रीका ने जो फाइट बैक किया, हेनरी क्लासन और मिलर ने जो एप्लीकेशन दिखाई, वो सच में बड़ी अच्छी थी। यानसन आए और गए। थोड़ी सी जो उनके लोअर ऑर्डर है, उनसे उम्मीद ज्यादा थी, थोड़ी वो नहीं हो पाया। अदरवाइज रन 250 भी हो सकते थे। अच्छा, मैं कल भी ये बात कह रहा था और आज मैं ऑन एयर शो पे कह रहा हूँ,
यदि मेरे से पूछा जाए जितने भी शतक लगे अब तक 25-30 जो भी लगे, उन शतकों में सबसे अच्छा शतक कौन सा है, पहले नंबर पे आप किसको रखेंगे? तो मैं पहले नंबर पे रखूंगा डेविड मिलर के शतक को, दूसरे पे रखूंगा मैं जादरान के शतक को। या यदि कोई मेरे से पारी पूछे कि पूरे मैच होने के बाद, फाइनल अभी नहीं हुआ खैर, फाइनल के पहले सारे मैच होने के बाद सबसे अव्वल नंबर की पारी किसकी है, तो पहले पे मैं रखूंगा डेविड मिलर, और दूसरे पे केएल राहुल, और तीसरे पे जादरान। तो ये तो रही बात। बाकी कल होने के बाद बढ़िया रिकवरी की और 213 रन का पीछा करते हुए 60 रन तक कोई विकेट नहीं था। उसके बाद जब विकेट लिए तो 60 पे पहला, 61 पे दूसरा, और 110 या 12 पे तीसरा विकेट गिरा, फिर 134-35 पे चौथा, फिर वही पांचवा हो गया, 170 पे 74, 137 पे पांचवा, 170 पे 74 पे छठा, और फिर एक साझेदारी हुई और फिर 7वां विकेट गिरा। तब तक मैच हाथ में आ चुका था। तो ये तो रहा इस मैच का रैपअप। यदि मैं बात करूं तो बहुत अच्छा प्रदर्शन मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड का, और अफ्रीका पे जो टैग लगा था वो टैग लगा ही रहा, और अफ्रीका पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेलती है, लेकिन पता नहीं सेमीज में जाके क्या हो जाता है, न मालूम क्यों कि उसे बाहर होना ही पड़ता है। जी Absolutely. An outstanding performance as far as Maharaj is concerned. 10 overs, 2 wickets for 24 runs. I think 1 or 2 wickets. Yes, 24 runs. What a fantastic effort. Good spell on the pitch where spinning was available, turning was available. He was absolutely unplayable. But एक cautiously शायद ऑस्ट्रेलिया धीरे खेल रहा होगा उनको, या उनको निकालना चाह रहा होगा। शम्सी ने भी बॉलिंग अच्छी की, तबरेज शम्सी ने भी बॉलिंग अच्छी की, विकेट्स उनको भी मिले, लेकिन मुझे लगता है कुछ कैचेस जो अफ्रीका ने छोड़े शायद वो भारी पड़ गए उन्हें, और वो मैच अपने हाथ से ऑस्ट्रेलिया के हाथ में दे बैठे। वो एक सबसे बड़ा कारण था। कुंटन डिकॉक के पास एक कैच गया, कैचेबल हाइट पे था, वो अंदरूनी किनारा लगा, अगर वो पकड़ लेते शायद स्थिति कुछ और हो सकती थी, क्योंकि क्रिकेट में 2-3 गेंदें अच्छी चाहिए होती है बॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो शायद थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन, और दूसरी बात मिस कैलकुलेशन एक जगह और हुआ, जब महाराज के साथ मिलर वगैरह खेल रहे थे, मिलर के साथ और जो बैट्समैन थे कोजी वगैरह, इनको थोड़ा सा रुकना चाहिए था। जबरदस्ती स्ट्राइक कर रहे थे मिलर के मौजूद होते होते भी। शायद ये भी डिफरेंट डाल गया 15-20 रन का, अदरवाइज कुछ रन तो और होते अफ्रीका के पास लड़ने के लिए। बट जो भी था, दे फॉट बैक ब्यूटीफुली। दे at least outplayed Australia for some point of time, but again फाइनली जीत तो जीती है, और ऑस्ट्रेलिया अब फाइनल में खेलेगा भारत से। तो कमजोरियां और क्या मजबूत पक्ष है उस पर बात होती रहेगी। कल भी एक शो करेंगे हम, और परसों भी अगर हमें शायद मौका मिलेगा करने का। मुझे लगता है 16 तारीख है ना, 17-18 2 दिन मौके मिलेंगे, 2 शोज आएंगे, और फाइनल के दिन भी एक शोज होगा। तो 3 शोज अभी आने वाले लाइंड अप हैं, उसमें और बात करेंगे। फिलहाल आज के मैच पर हमने बात कर ली, और फाइनल के बारे में आप कुछ कहना चाहें तो कहें। जी हाँ, फाइनल के बारे में तो कहूंगा, उससे पहले जरा सा रैपअप हम बता दें। एक मैच और हुआ था जो इंडिया और न्यूजीलैंड का हुआ था, बड़ा महत्वपूर्ण मैच था। शॉर्टकट में ही उस पे भी थोड़ी सी चर्चा यदि की जाए तो सही रहेगा, क्योंकि लोगों को ये पता लगना चाहिए कि पहली टीम फाइनल में पहुंची कैसे। दरअसल ये मैच खेला गया भारत और न्यूजीलैंड के बीच 15 तारीख को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ये मैच खेला गया। वहां पे भारत ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो कि बिल्कुल सही फैसला था। रोहित शर्मा ने अपनी पारी को, अपने विकेट को उन्होंने बढ़िया क्रिकेट खेलते हुए, उन्होंने अपनी इंडिविजुअल की परवाह नहीं की,
कि बहुत लोग होते हैं मेरा 50 हो जाए, मेरा 100 हो जाए, लेकिन ऐसी कोई बात उनके दिमाग में नहीं आई। 29 गेंदों में 47 रन बना के वो आउट हुए। शुभमन गिल मुंबई की गर्मी को नहीं झेल पाए और 66 गेंदों में 80 रन बनाए। 65 गेंदों में 79 रन बना के वो रिटायर्ड हर्ट हुए थे। उसके बाद में खेलने आए अंत में तो 66 गेंदों में 80 रन बना के नाबाद रहे। और यदि मैं बात करूं तो विराट कोहली का 50वां शतक भी उस मैच में आया। उन्होंने 113 गेंदों में 117 रन बनाए। वहीं पे मैच डिसाइसिव मूवमेंट आया श्रेयस अय्यर का। जी हाँ, 70 गेंदों में 105 रन का वो मूवमेंट, बहुत मजेदार मूवमेंट था वो। और मेरे हिसाब से नॉकआउट में सबसे तेज शतक भारत की तरफ से आई थिंक होना चाहिए वो। और फिर नीचे आके केएल राहुल ने भी 20 गेंदों में 39 रन, ताबड़तोड़ 39 रन बनाए। यानी पूरे रन बने 397 रन पूरे 50 ओवर खेल करके। इसका अर्थ ये था 398 रन बनाने थे यदि न्यूजीलैंड को भारत को हराना है 2019 की तरह। सभी लोग सांस रोक के खड़े थे, लेकिन जब न्यूजीलैंड ने 398 का पीछा किया, 2 विकेट जल्दी 39 पे 2 हो गए। मोहम्मद शमी ने ही लिए, सचिन रविंद्र और कॉनवे आउट हुए। कॉनवे का कैच केएल राहुल ने पकड़ा, बहुत बढ़िया, और सचिन भी आउट हो गए। उसके बाद एक लंबी चौड़ी साझेदारी बुनी Of गई, 181 runs. 181 रन की Yes. साझेदारी। डेरल मिचेल और कप्तान केन विलियमसन सदैव भारत की जीत में रास्ते का कांटा बन जाते हैं, उस दिन भी बने। और जब 220 रन का स्कोर था, वहां पे एक कैच आया, मोहम्मद शमी को तलब किया कप्तान ने, वो कैच आया। दबाव में सूर्य कुमार यादव को पता रहता है कि वो कैच कैसे पकड़ने हैं। उससे पहले मोहम्मद शमी विलियमसन का कैच छोड़ चुके थे, मायूसी छा चुकी थी, लेकिन फिर भी मोहम्मद शमी ने हार नहीं मानी और उन्होंने एक गेंद ऐसी की, विलियमसन ने हुक और पुल के अंदाज में कुछ मिला मिला जुला जुला सा शॉट. जी हाँ, मिला जुला स्ट्रोक खेला उन्होंने। और वहां पे सूर्य कुमार यादव ने दबाव में कोई गलती नहीं की और विलियमसन का विकेट गिरते ही मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड हताश हो गया, भारत की बाछें खिल गईं और पूरा वानखेड़े झूमने लगा। 220 पे जब वो विकेट गिरा तो फिर टॉम लेथम को भी उसी ओवर में मोहम्मद शामी ने वापस भेज दिया। वहीं से गेट खुला और भारत ने दरवाजा तोड़ के जीत की एंट्री कर दी और डेरल मिचेल भी मुंबई की गर्मी को झेल नहीं पाए। बीच में फिलिप्स ने ताबड़तोड़ 41 बनाए, कोशिश की उन्होंने, लेकिन वो नाकाफी थे क्योंकि मिचेल को क्रैम्प्स आ गए थे। मिचेल मुंबई की गर्मी को झेल नहीं पा रहे थे और अंततः मिचेल भी 119 गेंदों में 134 बना के आउट हुए। और होते न होते न्यूजीलैंड इस सुपर 4 से बाहर हो गया और भारत को जीत का स्वाद चखने को मिला। इस तरह से भारत फाइनल में पहुंच गया। तो जी, Good ये victory सब of कुछ हुआ। 70 runs, 327 हाँ, what New Zealand मोहम्मद made. Mohammad जी Shami, what a जी fantastic bowler he बिल्कुल is. बिल्कुल 7 of 57. मोहम्मद शमी ने 7 विकेट लिए, 57 रन देके। और सबसे ज्यादा विकेट यदि किसी मैच में, किसी विश्व कप के मैच में किसी गेंदबाज ने लिए थे, वो थे आशीष नेहरा, जिन्होंने 6 for 19, yes. डरबन में 23 रन देके हाँ, 6 6 for विकेट लिए 23, थे। correct. जी, हाँ, दक्षिण अफ्रीका एक कोई और है 19 रन पर भी 6 विकेट लिए थे, नेहरा ही थे या कोई और थे, तो इस तरह से तमाम चीजें थी, बट ग्रेट और एफर्ट बाय शामी. कुछ रहे थे, कुछ स्टैट भी हैं कि अब 22 विकेट थे उस समय जाम्पा के। कल के मैच के बारे में मुझे पता नहीं जाम्पा ने कितने विकेट लिए,
लेकिन 22 विकेट थे तो मोहम्मद शमी ने 7 विकेट लेके 23 विकेटों पर पहुंच गए मैच 6 मैचों में। 7 विकेट लिए मोहम्मद शमी ने और एक एक विकेट मिला बुमराह, कुलदीप और जडेजा को, आई थिंक सिराज हाँ को, जडेजा या सिराज सिराज को कोई एक विकेट, हाँ बिल्कुल। नहीं सिराज को मिला था। हालांकि सिराज जडेजा का ने दिन अच्छा कैच नहीं था, पकड़े थे। लगातार 3 कैचेस पकड़ के मैच को टर्न कर दिया जडेजा ने भाई। बिल्कुल खतरनाक बिल्कुल फील्डर है और बिल्कुल। टर्निंग पॉइंट मैच का विलियमसन का विकेट ही था और कुछ नहीं। और वो उस ओवर में 2 लगातार विकेट गिर जाना ना, न्यूजीलैंड की कमर टूट अच्छा गई। एक मेरे को एक खबर मिली है, आप पुष्ट करना कि शुभमन गिल शायद फाइनल में नहीं खेल पाएंगे। हाँ, ठीक? संभावना यही नजर आ रही है अभी तक, लेकिन ये ऑफिशियल न्यूज नहीं है। इस पर अभी पुष्टि की जा सकती नहीं है क्योंकि अभी बीसीसीआई ने कुछ हाँ कंफर्म नहीं किया है। मैंने इसीलिए कहा आप पुष्ट कीजिएगा। मेरे पास एक खबर आई है तो उड़ती उड़ती खबर हमारे पास भी है, हम्म, लेकिन कोई सोर्सेज जो टॉप टॉप लेवल के हो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। अच्छा खैर फाइनल के बारे में बात करते हैं कि आपको क्या लगता है भारत ऑस्ट्रेलिया 2003 की हिस्ट्री दोहराना चाहेगा, इन भारत कोशिश करेगा कि 2011 की हिस्ट्री दोहराए। Absolutely, India need to take revenge as well, of 2003, where India lost by 125 runs, which is a huge margin as far as runs are concerned in winning cause. So India will look forward to lift the World Cup again after 12 years. Lastly, it was 28 years when India lifted the World Cup after 83 in 2011, and let's hope that India will lift the World Cup in 2023 as well. बड़ा अजीब लगता है जब हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोचते हैं और सही मायने में ना 2003 का जो विश्व कप था ना, उसी ने सही मायने में भारत के युवाओं को जगाया था, क्रिकेट देखने के लिए प्रेरित किया था और जिसका आज परिणाम है कि 2023 में घर घर में क्रिकेट देखा जा रहा है। मैं जब कल बाहर से आ रहा था तो जिस रिक्शे में बैठ रहा था, मतलब जब सेमीज चल रहा था भारत का 15 तारीख को, मैं जिस रिक्शे में बैठ रहा था, जिस गली से निकल रहा था, हर जगह क्रिकेट की गूंज सुनाई दे रही थी। एब्सोल्युटली, कई लोग रेडियो कमेंट्री भी सुन रहे थे, कई लोग टीवी पे देख रहे थे, कई लोग हॉटस्टार पे देख रहे थे, मतलब जगह जगह कमेंट्री नजर आ रही थी। उस दिन लग रहा था कि हाँ मैच हो रहा है। So it was all about the semi-final number 1 and 2. Congratulations to Virat Kohli for getting a 50th century in Mumbai in front of his idol hero Sachin Ramesh Tendulkar, who congratulated him as well via tweet, जिसमें उन्होंने लिखा कि भाई एक बार जब हम ड्रेसिंग रूम में मिले थे पहली बार, तब लोगों ने तुम्हारा मजाक बनाया था पैर छूने के मामले को लेके, और उसके बाद तुमने ऐसे क्रिकेट खेली कि मेरे दिल को छू लिया, मेरे दिल में जगह बना ली. दैट वाज व्हाट सचिन तेंदुलकर message for Virat Kohli. Anushka Sharma was there, and some other great players. Vivian Richard was there in front of lots of personalities. Virat Kohli has made a history in ODI cricket. So I think we have discussed or cover all the topics, whatever is possibilities जी for हाँ, the. चलते चलते एक न्यूज मेरे पास और है, वो है गोल्डन बैट को लेकर के। गोल्डन बैट की रेस में जो सचिन रविंद्रा और क्विंटन डिकॉक थे, दोनों पीछे हो गए हैं। तो कोई नहीं ले पाएगा. तो नहीं, अब डिकॉक तो नहीं ले सकते, लेकिन संभावना है शायद वार्नर कितना पीछे है देखना पड़ेगा। हाँ, नहीं नहीं, रचिन भी नहीं ले 700 सकते। सचिन तो नहीं, अब तो 700 से बहुत पीछे होंगे वार्नर. रचिन और डिकॉक दोनों नहीं ले सकते। अब देखना पड़ेगा क्या सीन है। वहीं पे मोहम्मद शमी और जेम्पा के बीच कंपटीशन देखने को मिलेगा। हम आई ऐसी थिंक उम्मीद शमी, अब करते आई हैं। थिंक शमी जीत जाएंगे उसमें. जो भी जीते मैं कह नहीं सकता। यदि भारत जीतता है, हाँ इतना मैं कह सकता हूँ, यदि भारत जीतता है तो मोहम्मद शमी जीतेंगे। यदि ऑस्ट्रेलिया जीतता है तो मुझे लगता है वो जेम्पा की परफॉर्मेंस पे जीतेंगे और जेम्पा फिर वो ऑरेंज कैप लेंगे। जो गेंदबाजी में सबसे ज्यादा विकेटों का क्रम है, गोल्डन बॉल. मुझे लगता है हमने सभी पहलुओं को इस समय टच किया है और समय बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा कि हम किसी और
टॉपिक पे आपसे बात करें या जरा सी भी चर्चा को हम आगे बढ़ाएं। तो मुझे लगता है कि इस अंक में बस इतना ही। रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और दीजिए हम दोनों को इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, सुप्रभात।